Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, in today's lecture, in continuation with our first lecture, I try to introduce you or try to teach you the methods of uh, finding limits, computing the limits. So, there are a couple of methods. Our today's topic is, let's say, let me write computing limits or finding limits. So before finding limits or trying to let's say learn the methods of the finding limits, we need to know how a function is being represented or how many ways we can represent a function. So there are representation of function. There are four ways. Number one is like verbal. Number two is visual, जो आपको नजर आता है, right? Like graph. Verbal means sentence, words, and third is numerical, for example tables. Fourth is algebraic, means expression or formula. I think we have discussed these already, the types of the representation, but to give you a let me give you an idea. So verbal expression, verbal example is like temperature at different time in a day changes, right? This is like expression. So temperature is depending upon the time. At 9 a.m. temperature is, let's say, 12. At 10 a.m. it's 14 or 16 or 18, and at 12 it gets warmer, so ज़्यादा हो जाता है, and all these. The second is like visual, means graph. Now this is very informal way. We hardly use this representation of the function, very informal, not often used, ठीक है, but graph is somehow used, right? And जो बाकी दो methods हैं इसके अलावा भी वो भी ज़्यादा use होते हैं. So graph is basically combination of points in a x y plane. Okay, so this is function. यहाँ पर आपकी y है, this is x. We represent like this. So the combination of points in xy plane is graph, and this is another representation of the function. Okay, let me give you a very practical example, or if you just want to try the temperature example. So in the winters everyone uses the warm water, hot water, and when you open the faucet or the, let's say, tap, so water drains, right? And it शुरू में आपको थोड़ा सा जब पाइप में पानी नहीं होता है, that is not that hot, और थोड़ी देर बाद वो hot ज़्यादा वार्म पानी आ जाता है, हॉट वाटर आ जाता है, और फिर टाइम के बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, बिकॉज योर हॉट वाटर टैंक इज completely, let's say, depleted or getting empty. So the temperature of the water at different time when faucet or the tap is opened, वो आपका क्या कम होता जाएगा ना टेम्परेचर, ठीक है. So example visual again. So let's see, this is capital T and this is time. ये आपके टाइम के छोटे छोटे स्केल्स हैं. लेट से 10 मिनट 20 30 40 50, एक घंटे में 5 मिनट अगर खत्म हो जाता है, ये 5 10 इस तरह. एंड दिस इज टेम्परेचर. इनिशियली आपका पानी थोड़े से टाइम के लिए कूल होगा, ठीक है, फिर ये आपका वार्म हो जाएगा,
फिर ये काफ़ी टाइम वार्म रहता है इस तरह इतने टेम्परेचर में, और उसके बाद फिर ये ठंडा होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके हॉट वाटर टैंक आपकी डिप्लीट हो जाती है. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. अच्छा, थर्ड, अगर इसी एग्जांपल को हम टेबुलेट करें, सो दिस इज टाइम, दिस इज टेम्परेचर, एंड लेट्स मेक अ टेबल. सो आपने नल ओपन किया है एट 0 सेकंड्स. अब ये सेकंड से आपका टेम्परेचर और पानी का लेट से कितना होना चाहिए, 15. ठीक है. 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद ये 30, एंड 30 सेकंड बाद 40 डिग्रीज. फिर ये 40 तक आपको 40 रहता है, एंड अगेन 50, 60, 70 सेकंड्स टिल लेट्स से 2-3 मिनट तक, 3 मिनट 180 सेकंड्स तक ये आपका 40 ही रहता है. ठीक है. और उसके बाद ये फिर आपका कूल होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो आपका टेम्परेचर है उस पर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, 220. सो दिस इज टेबुलर फॉर्म. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम डिफरेंट फंक्शन की रिप्रेजेंटेशंस क्यों यूज करें, बिकॉज दीज आर हेल्पफुल टू डिफाइन कि हमें कौन सा मेथड लिमिट्स के लिए यूज करना है. ठीक. ऑलराइट. सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन जो सबसे ज्यादा यूज होती है, एंड दैट इज अलजेब्रिक, जिसको हम कहते हैं कि एक्सप्रेशंस में या फार्मूलाज में, ठीक है, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है. आर फार्मूला कैसे, फॉर एग्जांपल y is equal to f of x is equal to x square minus 2x plus 1, ये आपकी रही एक्सप्रेशन, एंड x cube minus 1 डिवाइड बाय 2x square minus square root of x. ये एक और एग्जांपल e power x minus sin स्क्वायर रूट ऑफ x, ये एक और एक्सप्रेशन. ठीक है. इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, फ्रैक्शंस भी हैं, न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, और सिंपल पॉलिनोमियल्स भी हैं. ठीक है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आते हैं मेथड्स जो लिमिट फाइंड करने के हैं. ठीक है. वी आर so based upon the representation of the function we have different methods for finding limits. So let's call it estimating limits, yeah, finding limits, whatever you feel easy to call. Then the first one is estimating. अब सबसे पहले तो आप ये चीज नोट कर लें कि वो जो वर्बल रिप्रेजेंटेशन थी फंक्शन की, दैट इज वेरी इनफॉर्मल, दैट इज वेरी वेग, उसको हम लिमिट फाइंड करते वक्त रिप्रेजेंटेशन को हम यूज नहीं करते. ठीक है. मोस्टली हमें जो फंक्शंस गिवन होते हैं वो एक्सप्रेशंस की फॉर्म में गिवन होते हैं. ठीक है. अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन होता है, लेकिन हम उस अलजेब्रिक फॉर्म से टेबल भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं. तो दो जो मेथड्स हैं वो सिर्फ टेबल और ग्राफ्स के लिए है. ठीक है. मतलब इसका मतलब है एक मेथड सिर्फ टेबल के लिए है, एक सिर्फ ग्राफ के लिए. बाकी जो मेथड्स हैं लिमिट कंप्यूट करने के वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए. सो एलिमिनेटिंग सबसे पहले हम करते हैं ग्राफ से, लिमिट्स फ्रॉम ग्राफ्स. ठीक है. ये खास तौर पर इट इज यूज्ड for discrete functions. ठीक है. Oh sorry, not discrete, but let me say it piecewise. Sorry, piecewise functions. For piecewise functions कैसे होते हैं, let me paste कुछ इस तरह से होते हैं. मैं ग्राफ्स की फॉर्म में पहले उसको आपको बताता हूँ. ठीक है. ये रहा आपका x and this is y
एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव है एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। सो इफ दिस इज -1, दिस इज 1, ये कुछ फंक्शन है और यहाँ पर ये हॉलो सर्किल है, मतलब एम्प्टी सर्किल है, ठीक है। ये भी आपका 1 हुआ, y की वैल्यू, ये आपका हुआ 2। सो ये यहाँ से फिर ये इस तरह स्ट्रेट लाइन, ओके। लेट मी मेक इट इन अ डिफरेंट कलर। एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये फिल्ड सर्किल और ये आपका हॉलो सर्किल एंड देन वी हैव दिस कर्व। अब आप नोट करते होंगे कि ये जो कर्व है दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर, और ये जो कर्व है दिस इज लाइक क्या कहा जा सकता है इसको, थ्री एक्स, ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन है, 3x - 1, ठीक है, ओके। नो, बल्कि दिस इज x - 1 -x -1, नो, क्या होगा इसका, ओके। सो ये दिस स्ट्रेट लाइन इज अ फंक्शन 1 - x, ठीक है। सो दिस इज f of x is equal to 1 - x एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, मतलब ये यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में x की जो भी वैल्यूज होंगी उनके लिए फंक्शन ये है, और -1 से नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनके लिए फंक्शन 1 - x है। तो मतलब पीस वाइज दो हिस्सों में फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, हम उसको लिखते फिर इस तरह है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 1 - x स्क्वायर। एक्स की कौन सी वैल्यू उसके लिए है, जो -1 से ग्रेटर हो, x ग्रेटर देन -1, और ये -1 से लेस हो, कम हो, ठीक है, ओके। और एग्जैक्टली -1 पर कौन सी हमें वैल्यू चाहिए, अब ये हालो सर्किल बता रहा है कि फंक्शन की -1 पर वैल्यू आप इस कर्व के अलोंग नहीं ले सकते क्योंकि ये हॉलो है। दिस फील्ड सर्किल टेल्स यू I have the value for function when x is equal to -1, so इसका मतलब है कि ये इक्वल वाली साइन इसकी यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये पीसवाइज फंक्शन, ग्राफ्स इस तरह के फंक्शंस की लिमिट फाइंड करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर इसका प्रॉब्लम फार्मूलेट करने दें या लिखने दें, लिमिट x approaches to -1 f of x is equal to what, क्या होगी इसकी लिमिट when x approaches to -1। अब आप क्या करेंगे इसकी, तो हमें ग्राफ से लिमिट फाइंड करने का मतलब ये है कि x आप -1 की तरफ लेफ्ट से भी जाएं और राइट से भी जाएं, तो ये आप रहा x इज इक्वल टू -1, इसमें आप लेफ्ट से भी आए और राइट से भी आए, दोनों तरफ से आते हुए आप जो कर्व्स आपके पास गिवन है, फंक्शन के ग्राफ्स गिवन है, उसके अलोंग आए, उसी रास्ते के को यूज करते हुए हैं। तो लेफ्ट से रास्ता आपके पास ये है ना, इसी रास्ते से आएंगे। आप देखते हैं कि आप 2 पर पहुंच रहे हैं जब आप लेफ्ट से आते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइट की तरफ से, अलोंग दिस कर्व, अलोंग दिस पाथ। तो हम देखते हैं कि इस रास्ते से आते हुए हमें जो जिस जगह पे हम पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं वो है वो क्या है 1, y की वैल्यू, ठीक है। सो f of x approaches to 2 from left, f of x approaches to 1 फ्रॉम राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से किसी और वैल्यू को फंक्शन पहुंच रहा है, राइट से किसी और को, तो इसको जो लिमिट होगी वो एक नहीं है, लेफ्ट से लिमिट दूसरी है, राइट से लिमिट दूसरी है। लेट मी समराइज इट। सो द लेफ्ट लिमिट इज
2 when x approaches to -1 and right limit is +1 when x approaches to -1. Now this is where estimating limits using graph is useful. Estimating limits with graphs is useful. ठीक है, अब ये इसकी 2 लिमिट्स हैं, एक लिमिट्स नहीं है, लेकिन वैल्यू अगर आपने नोट किया होगा तो वो 2 पर ही था. ठीक है, वैल्यू आपका 2 पर था. ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ.